Dear students, myself Dr. Suman Sharma. Now you are very much familiar to me. Today we will talk about the isoelectric point. Students, if I recall the contents of last lecture, you know it was on the synthesis of alpha amino acids. So, the present lecture is in continuation of last lecture as we have studied various methods for the synthesis of alpha amino acids. So now we start today's topic, isoelectric point, right? Now first is the definition of isoelectric point. The isoelectric point is the pH at which a molecule or surface carries no net electrical charge, right? Many molecules are zwitterions containing both positive and negative charges. The net charge of the molecule is governed by the pH of the surrounding medium. The Pi is the pH value at which the molecule carries no net electrical charge, and thus the negative and positive charges are equal, right? For a doubly charged species containing both negative and positive charges, for example an amino acid with only one amine and one carboxyl group, the Pi is simply the sum of the pKas of the two ionizable groups divided by 2. The term isoelectric point IEP and point of zero charge PZC are often used interchangeably, right? Although they have subtle differences, right? Now come to the next slide. For surfaces, in the case when the surface charge determining ion are H oblique OH minus, the net surface charge is affected by the pH of the surrounding liquid medium, right? So it is all about the definition of isoelectric point, right? इसको अभी हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अब यदि हम इसको थोड़ा सा इजी वे में बताना चाहें तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स समविभव बिंदु. ये क्या होता है? प्रत्येक एमिनो एसिड की एक निश्चित पीएच पर ज्विटर या द्विध्रुवीय आयन की सांद्रता अधिकतम होती है तथा इस पीएच पर कोई एमिनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है. इसे एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, राइट? यदि हम इसको दूसरे शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? एक निश्चित पीएच पर धनायन की सांद्रता ऋणायन की सांद्रता के बराबर होती है, राइट? और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी समविभव बिंदु किसी भी एमिनो अम्ल का एक कैरेक्टरिस्टिक गुण है, एक अभिलाक्षणिक गुण होता है. और सभी जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समान नहीं होता है. यह एमिनो एसिड की क्षारकता पर, कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता पर निर्भर करता है और इसका मान अणु की संरचना पर भी निर्भर करता है और यह R की प्रकृति के साथ बदलता जाता है, राइट? फिर आता है ना एक टर्म आती है, अभी हमने यूज़ करी, द टर्म इज ज्विटर आयन.
is originally derived from the German word Zwitter, which can be roughly translated as hybrid or hermaphrodite, राइट। इसका मतलब ये होता है ज्विटर जो है, ये जो इसका ओरिजिन जर्मन वर्ड से हुआ, और इसका यदि हम ट्रांसलेट करना चाहें तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड या hermaphrodite, right? It is a German word. A Zwitter ion is an ion that contains two functional groups, ठीक है। Zwitter ion क्या होता है, इसके अंदर दो functional groups present होते हैं। In simple term, it is an as ion possessing both positive and negative electrical charge, ठीक है ना, दोनों तरह के चार्ज इस आयन पर प्रेजेंट होते हैं। Therefore, Zwitter ions are मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना, ये अधिकतर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। द नेट फॉर्मल चार्ज इज़ यूजुअली जीरो, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उनका जो नेट फॉर्मल चार्ज होता है उस पर वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ये ज्विटर आयन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ज्विटर आयंस आर समटाइम्स रेफर टू एज इनर सॉल्ट्स, ठीक है, हम इनको इनर सॉल्ट्स का भी नाम देते हैं। यूजुअली डाइपोलर कंपाउंड्स आर नॉट क्लासिफाइड एज ज्विटर आयंस, ठीक है। जो डाइपोलर कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ज्विटर आयन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। द डिस्टिंक्शन लाइज इन द फैक्ट दैट द प्लस एंड माइनस साइन ऑफ द amine oxide signify formal charges, right? And Zwitter ions may be worthy of medicinal chemistry design considerations when working with acid base or neutral leads, right? Now इसकी अब हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी ज्विटर आयन की। A Zwitter ion is a molecule that has both positive and negative regions of charge, ठीक है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है ज्विटर आयन जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। इन द सॉलिड स्टेट एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयंस, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट के अंदर एमिनो एसिड जो है वो डाइपोलर आयन की तरह बिहेव करते हैं एंड कॉल्ड ज्विटर आयंस, राइट। वाइल डिस्कसिंग वेदर अ सब्सटेंस इज ज्विटर आयोनिक और नॉट, द pH रेंज इज in which the information is required must be specified because a sufficiently alkaline solution will change the Zwitter ion to an anion and a sufficiently acid solution will change it to a cation, right? ये जो है हम ज्विटर आयन के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर एमिनो एसिड्स जो है वो क्या है, डाइपोलर आयन की तरह बिहेव करते हैं और इनको हम ज्विटर आयंस का नाम देते हैं। अ सब्सटेंस इज ज्विटर, अब हम यदि ये पता लगाना चाहें कि कोई सब्सटेंस जो है वह ज्विटर आयोनिक है या नहीं है तो दैट डिपेंड्स ऑन द pH रेंज, ठीक है ना। pH रेंज जो है ये डिस्कस करती है कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो ज्विटर आयन है या नहीं है। विच द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड बिकॉज सफिशेंटली एल्कलाइन सोल्यूशन विल चेंज द ज्विटर ion to an anion and a sufficiently acid solution will change it to a cation, ठीक है। यदि यहाँ पर उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर जो है एल्कलाइन जो है सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, ज्विटर आयन को एनायन में कन्वर्ट कर देगा, और यदि सफिशिएंटली एसिड सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, ज्विटर आयन को केटायन में चेंज कर देगा, राइट। Let us further understand the topic by looking at an example of ज्विटर आयन, ठीक है ना। अब हम इसको
कोई एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करते हैं। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ज्विटर आयंस। ठीक है, एमिनो एसिड्स जो है ये इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ज्विटर आयन का। दे आर मेड अप ऑफ एन अमोनियम और एमिनो ग्रुप। ठीक है ना, ये किससे मिलकर बने होते हैं, अमोनियम एंड एमिनो ग्रुप से, विच कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज अ कार्बोक्साइल ग्रुप विच कंटेन्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अमीनो जो ग्रुप है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। द ज्विटर आयन फॉर्म ऑफ एन एमिडो एसिड इज गिवन बिलो। ठीक है, ज्विटर आयन जो है उसका हमने स्ट्रक्चर आगे वाली स्लाइड में बता रखा है। राइट, ये जो है ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर है। इट्स अ एमिनो एसिड और यहाँ पर जो है ज्विटर आयन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एमिनो जो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो समूह है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये ओवरऑल जो है वो ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बता रखा है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Apart from amino acids, any compound that contains acid and base centers can obtain a ज्विटर आयन form। ठीक है ना, यदि कोई भी ऐसा अमीनो एसिड जो है या कंपाउंड है जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों ही सेंटर प्रेजेंट है तो वो जो है ज्विटर आयन की कैटेगरी के अंदर आ सकता है। सम मोर एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्राइसिन, वाइसिन, solid sulfamic acid, alkaloids like साइलोसिन amongst others। ठीक है ना, ये जो हैं ये सब जो है ज्विटर आयन के एग्जाम्पल्स हैं। राइट, तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ज्विटर आयंस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, और उसका जो है क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, अभी डिस्कस किया। तो आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट है वो भी क्या है, ज्विटर आयन की जो है एक प्रॉपर्टी है। राइट, तो यहाँ पर हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे। अनदर मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ ज्विटर आयन इज दैट इट हैज़ एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है ना, ज्विटर आयन के अंदर जो है उसकी जो एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होती है। और इसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीआई से, पीएच, ठीक है ना, आई से एंड आईईपी, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज़ द पीएच वैल्यू at which the charge in molecule is neutral। Right, usually the net charge on a molecule is greatly affected by the pH of its surrounding environment। ठीक है, यहाँ पर जो है नेट चार्ज ऑन ए मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज है वो किससे अफेक्ट होता है, पीएच से। ठीक है ना, और किसकी पीएच, जो कि उसके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग है उसकी पीएच पर डिपेंड करती है। राइट, इन दिस केस मॉलिक्यूल्स कैन बिकम मोर चार्ज्ड, राइट, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, कुछ भी हो सकते हैं वो, एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या तो वो प्रोटॉन का उनमें लॉस होगा या उनका गेन होगा। राइट, तो उस पर ये जो है वो डिपेंड करता है। इफ़ वी लुक एट अमीनो एसिड, यदि हम अमीनो एसिड को देखते हैं या अमीनो एसिड की बात करते हैं तो द अमीनो ग्रुप इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड के अंदर जो अमीनो ग्रुप होता है वो बहुत ही जो है वो पावरफुल प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। एंड द कार्बोक्साइल ग्रुप इज़ एन इफ़ेक्टिव प्रोटॉन डोनर। ठीक है, कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है, वो प्रोटॉन डोनर होता है और यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप होता है दैट इज़ इफ़ेक्टिव प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है,
In addition, the solubility of a molecule at a given pH is also affected by the pI value. ठीक है ना, solubility of a molecule है ना, वो क्या है, वो भी pH पर डिपेंड करती है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की जो विलयता है दैट इज़ लार्जली अफेक्टेड बाय द पीएच, और जब पीएच पर वो डिपेंड करती है तो उससे जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक जो वैल्यू है वो भी उससे अफेक्ट होती है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पीएच जो है उसका आइसो इलेक्ट्रिक वैल्यू को बताने के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। अब हम पीएच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ pH value, right? The pH value at the isoelectric point can be calculated from the equilibrium constant, ठीक है ना। किसी भी pH वैल्यू को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काम में लेते हैं। ये जो है एसिड एंड बेस ऑफ द ज्विटर आयन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला दिस, ठीक है ना। किसी भी ज्विटर आयन की या किसी भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये क्या है, पी आई इज इक्वल टू पी के ए वन प्लस पी के ए टू अपॉन टू, राइट। इट्स द जनरल फार्मूला ऑफ जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर क्या है, पी आई इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, राइट। के ए वन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड के ए टू इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, राइट। तो ये जो है फॉर्मूला है कि पीएच निकालने के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हम इस तरह से निकालते हैं, राइट। फिर अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ ज्विटर आयन। ज्विटर आयंस की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। ज्विटर आयंस आर वाइडली अप्लाइड इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ज्विटर आयंस को प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के काम में लिया जाता है वाया SDS पेज, ठीक है ना। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल एमाइड, राइट। SDSPAG इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल एमाइड, राइट। मॉलिक्यूल्स वाया SDSPAGE। SDSPAGE का मतलब सोडियम डोडेकासाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड गेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। मेथड विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। इस जो है मेथड को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर काम में लिया जाता है, राइट। दे ऑल्सो हैव ग्रेट पोटेंशियल टू बी अप्लाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ मेडिसिनल एंड बायोलॉजिकल रिलेटेड फील्ड, ठीक है। इनका जो है मेडिकल और बायोलॉजिकल जो है फील्ड के अंदर बहुत यूज़ होता है। सम पॉपुलर यूजेस इंक्लूड मेडिकल इम्प्लांट्स, ड्रग डिलीवरी, ब्लड contacted sensors, separation membrane as well as anti-fouling coatings of biomedical implants that help prevent the buildup of microbial adhesion and biofilm formation, right। कहने का मतलब ये है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ होता है बायोलॉजी के अंदर जो है, और मेडिकल साइंस के अंदर जो है इनको ज्विटर आयंस को काम में लिया जाता है, राइट। इन द मेराइन इंडस्ट्री ज्विटर आयोनिक पॉलीमर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट सब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बिल्डिंग अप ऑन बोट्स एंड पायर्स, राइट। तो ये क्या है, टोटल
एप्लीकेशंस ऑफ ज़्विटर आयन, राइट। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज़्विटर आयन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है, राइट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।